As you all know that Indus Valley civilization is an stone age. That means ये एक पाषाण काल था. And stone age is divided in three parts, that is old stone age, पूर्व पाषाण काल, middle stone age, मध्य पाषाण काल, and new stone age, नव पाषाण काल. We also say Paleolithic age to the old stone age, Mesolithic to the middle stone age, and Neolithic to the new stone age. Now, the old stone age starts from 30,000 BCE to 10,000 BCE. The main work was hunting, and the people who lived knew about fire. In Middle Stone Age, it starts from 10,000 BCE to 8,000 BCE. The first known animal was dog and the other one was horse. In this age, the people produces fire. Now, the New Stone Age. It starts from 8,000 BCE to 3,000 BCE. The main profession was agriculture. In this age, the people start to use fire. In New Stone Age, the people started to make wheel. The first wheel was made up of stone. And they started to use the weapons made up of bones of animals. Homo sapiens. Around 36,000 BCE, human had become inform. करीब 36,000 ईसा पूर्व पहले मानव ने अपना रूप लिया था. The first institute of Stone Age culture was established by Robert Bruce Foote in India in 1863. भारत का सबसे पहला पाषाण काल की संस्कृति, भारत की सबसे पहली पाषाण काल की संस्कृति की नींव रॉबर्ट बूस फूट ने डाली थी करीब 1863 में. The first bone weapon found at बिहार, इंडिया. हमें भारत के बिहार क्षेत्र में सबसे पहला हथियार हड्डियों का मिला था. The first metal was copper, which was used for making weapons. हमें जो सबसे पहला धातु मिला था वह तांबा था, कॉपर था, जिसे हथियार बनाने में प्रयोग किया जाता था. The first clue of agriculture was found from Mehergarh, which is situated in west of Indus, now in Pakistan. हमें कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है. Now, if we talk about Indus Valley civilization, we concluded that all the civilization present in Indus or Harappan, they comes across rivers. If we see in north, it is around 1400 kilometer to Chenab river, which is in Manda in Jammu and Kashmir. If we talk about south, it is from Godavari river, which is in Daimabad, Maharashtra. If we talk about east, it is situated in Hindan river, Alamgirpur, Meerut, which is in UP. And if we talk about west, there is Dast river around 1600 kilometer at Balochistan and Pak border. The people live near Indus river was known as Indos. जो लोग
इंडस नदी के पास, सिंधु घाटी के पास रहते थे, उन्हें इंडोस कहा जाता था। नाउ द फर्स्ट साइट हड़प्पा, इसकी लोकेशन है मोंटोगोमेरी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। द लोकेशन इज मोंटोगोमेरी इन पंजाब, पाकिस्तान। रिवर रावी, ईयर 1921। हड़प्पा की खुदाई, द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा वॉज इन 1921। द एक्सकवेटर वॉज दयाराम साहनी। फाइंडिंग्स, ग्रैनरीज, कॉफिन ब्यूरियल एंड टाउन। वहाँ पे हमें क्या क्या मिला था? हमें बहुत सारे माल गोदाम मिले थे, हमें लोगों को गाड़ने के लिए जगह मिली थी, हमें टाउन्स मिले थे। द पीपल ब्यूरे पॉट्स, ज्वेलरीज एट्सेट्रा विद बॉडीज़। जब कोई मर जाता था तो हम उसकी पसंदीदा चीज़ जैसे कि घड़े, मटके, उनकी ज्वेलरीज, उनके आभूषण उनके साथ गाड़ा करते थे। नेक्स्ट साइट इज मोहेंजोदारो, which was also known as the largest city in Harappan civilization. The location was Sindh in Pakistan. River was Sindhu River or Indus River. Year 1922. Excavated in 1922 and the excavator was Rakhal Das Banerjee. फाइंडिंग्स मतलब हमें वहाँ से क्या क्या मिला था? हमें ग्रेट बाथ मिला था, हमें ग्रेट ग्रैनरी मिली थी, हमें एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली थी, एक बियर्डेड मैन मिला था मतलब एक दाढ़ी वाला बुढ़ा मिला था, टेराकोटा टॉयज़ मिले थे, हमें बुल की सील मिली थी और पशुपति सील मिली थी। नेक्स्ट इज चन्हू दारो, जिसकी लोकेशन है सिंध इन पाकिस्तान। रिवर वॉज संधू, दैट इज इंडस। द ईयर इन विच इट वॉज एक्सकवेटेड वॉज 1934 एंड द एक्सकवेटर वॉज गोपाल मजूमदार। द फाइंडिंग्स वॉज बीड मेकिंग फैक्ट्री मतलब बीड बनाने की फैक्ट्री, लिपस्टिक, ब्लैक लाइनर जो हम आई लाइनर काजल यूज़ करते हैं, कॉम्ब जो कि वुड और एलिफेंट टीथ से बनी होती थी। नेक्स्ट इज रोपाड, लोकेशन वॉज पंजाब इन इंडिया। द रिवर वॉज सतलुज एंड द ईयर वॉज 1953 to 1955 मतलब इसकी जो एक्सकवेशन थी वो 1953 से लेके 1955 तक हुई थी। द एक्सकवेटर वॉज यज्ञ दत्त शर्मा, एक्सकवेटर थे यज्ञ दत्त शर्मा एंड द फाइंडिंग्स वॉज ब्यूरीड ऑफ डॉग विद मेन। हमें वहाँ पे क्या चीज़ मिली थी कि जब कोई आदमी मर जाता था तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था, जिसके हमें बहुत सारे प्रूफ्स मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट इज लोथाल, द लोकेशन वॉज अहमदाबाद इन गुजरात, इंडिया। रिवर वॉज भोगवा। द ईयर इन विच इट वॉज एक्सकवेटेड दैट इज 1955 and 62. Excavator was Rangnath Rao. Rangnath Rao excavate Lothal in 1955 to 62. Findings was bead making factory, bead बनाने की फैक्ट्री, डॉकयार्ड जहाँ पे जहाज़ बनाए जाते हैं, बटन की सील, फायर आल्टर्स जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, पेंटेड जार, राइस, सेट ऑफ एलिफेंट टीथ्स। Next is Kalibangan. The location was Sri Ganganagar in Rajasthan, India. River was Ghaggar. The year in which it was excavated
that is 1961. And here there is 2 excavator. यहाँ पे 2 excavator थे, that is ब्रिज बासीलाल and बालकृष्ण थापर, BBL and BKT. इन दोनों ने ही कालीबंगन का एक्सकवेट किया था. कब? 1961 में. They both excavated Kalibangan in 1961. The name was Brij Basilal and Balkrishna Sharma, Balkrishna Thapar. The findings was baked burnt bangles, पके हुए बैंगल्स मिले. फायर आल्टर्स, अगेन जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं. शिवलिंगम, शिव जी का हमें लिंग मिला था वहाँ पर. स्मॉल सर्कुलर पिट्स कंटेन लार्ज अर्न्स एंड पॉटरीज, छोटे छोटे हमें पिट्स मिले थे, गड्ढे मिले थे, जिसमें उन्होंने पॉटरीज ढूंढी थी, बर्तन्स ढूंढे थे. बोन्स ऑफ कैमल्स, हमें कैमल्स की हड्डियां भी मिली थी. कहाँ से? फ्रॉम कालीबंगन. नेक्स्ट इज धोलावीरा. द लोकेशन वॉज कच्छ इन गुजरात, इंडिया. Again, the river was Ghaggar. The year in which it was excavated, that is 1960 by J.P. Joshi. The excavator was J.P. Joshi, who excavate Dholavira in 1960. The findings was bullock drives by nude humans. Bullocks मिले थे जिसे nude लोग, नग्न humans चलाते थे. वाटर रिजर्वर्स मिले. यूज ऑफ रॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें रॉक्स के यूज भी मिले थे. नेक्स्ट इज बानावली. द लोकेशन वॉज फतेहाबाद, हरियाणा इन इंडिया. एक्सकवेटर वॉज डॉक्टर R.S. बिष्ट, हु एक्सकवेट इट 2 times, जिन्होंने 2 बार बानावली का एक्सकवेशन किया था. कब? इन 1975 एंड सेकेंड वॉज इन 1983 to 1984. डॉक्टर R.S. बिष्ट ने 2 बार बानावली का एक्सकवेशन किया था. फर्स्ट टाइम 1975 में एंड सेकेंड टाइम फ्रॉम 1983 to 1984. द फाइंडिंग्स वॉज बार्ले, हमें बार्ली का वहाँ पे फाइंडिंग मिला था. टेराकोटा फिगर्स, प्लफ के हमें टेराकोटा फिगर्स मिले थे, जिससे उस टाइम पे कृषि हुआ करती होगी. नेक्स्ट इज लारकाना. द लोकेशन वॉज लारकाना इन पंजाब, पाकिस्तान. द रिवर वॉज सिंधु, इंडस. द ईयर इन विच इट वॉज एक्सकवेटेड वॉज 1922 बाय R.D. बनर्जी. R.D. बनर्जी ने लारकाना का एक्सकवेशन किया था 1922 में. द फाइंडिंग्स वॉज बार्ले, सिर्फ बार्ले की हमें वहाँ पे प्रूफ्स मिले थे, उसके साक्ष्य मिले थे. नेक्स्ट इज राखीगढ़ी. राखीगढ़ी वॉज ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट साइट इन हरप्पन सिविलाइजेशन और इन इंडस वैली civilization. If we talk about the largest city, so the largest city was Mohenjo-daro, and if we talk about the longest site, it was Rakhigarhi. The location was Hisar in Haryana, India. The year in which it was excavated was 1997 to 2000, and the excavator was Amrendra Nath. Amrendra Nath excavate Rakhigarhi in 1997 to 2000. Findings was terracotta wheels, हमें टेराकोटा के पहिए मिले थे. टॉयज़ मिले थे टेराकोटा के. कुछ मूर्तियाँ मिली थी, फिगरीनेस मिले थे एंड पॉटरीज मिली थी. नेक्स्ट इज आलमगीरपुर. द लोकेशन वॉज मेरठ इन यूपी, इंडिया. River is Hindon River. The year in which it was excavated was 1958, and the excavator was Y.D. Sharma. Y.D. Sharma excavate Alamgirpur in 1958.
एंड द फाइंडिंग्स वॉज इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन ट्रफ. हमें कपड़ों पे कुछ दाग मिले थे ट्रफ के, उसके निशान मिले थे. The last site of Harappan civilization is Sutka Gendor. The location was Baluchistan near the river Indus. The year was 1927 and the excavator was R.L. Steen. So the R.L. Steen excavate Sutka Gendor in 1927. The river was Dast River. And the findings was the trade point between Harappa and Babylon. तो R.L. स्टीन ने जब सुत्का गेंदौर का एक्सकवेट किया था 1927 में, तो उन्होंने एक ट्रेड पॉइंट ढूंढा था हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में.